Hello everyone. Oh, very good morning students. This is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, I'm again here with the same chapter, Devotional Path to the Divine. In this chapter, earlier we have discussed the idea of a supreme God, a new kind of bhakti in South India, Jnanars and Alvars, and after that, we have discussed about philosophy and bhakti, what is the difference between both, and Baswana's Veer Shaivism. Okay, we have discussed some points regarding the saints of Maharashtra, and we have seen some vachanas of Veer Shaiv and questioning of social orders, the persons who belong to the untouchables, we can say the from Mahar caste or downtrodden society members. Okay, and little bit we have discussed about Nathpanthis, Siddhas and Yogis. So today we'll start from Islam and Sufism as I have told you earlier in my previous video. So let's start student. Islam and Sufism. सूफिज़म मीन्स सूफ़ी मत, जैसे सूफ़ी लोग जो थे उनके क्या अपनी प्रिंसिपल्स थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी, उनके क्या ओपिनियंस थे. ओके, उनके विजन को हम इसमें डिस्कस करेंगे. इस्लाम एज यू ऑल नो इट्स अ काइंड ऑफ रिलीजन, जैसे हम हिंदू हैं, हिंदू, इस्लाम एंड क्रिश्चियंस, these are religions. So the sons had much in common with Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow beings. Islam propagated strict monotheism or submission to one God. In the 8th and 9th century, religious scholars developed different aspects of holy law, that is Shariat, and theology of Islam. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. They sought union with God much as lover seeks his beloved with a disregard for the world. Like the sand poet, Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, Sadi, like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis. The Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name, or sacred formula, contemplation, sama, that is singing, raqs, dancing, discussion of parables, breath control, etc. Students, so let's just we'll have a discussion of Islam and Sufism. Here you have seen some difficult word, I think, that I will explain. Okay, the sons had much in common with Sufis. जो संत थे वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, मतलब संतों में और जो सूफ़ी लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिल रही थी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिल रही थी. वो सेम थे, कई चीज़ों में बहुत अधिक समानता थी. यहाँ तक कि ये भी माना जाता था कि जो उन्होंने आपस में कई विचारों का जो आदान प्रदान किया है तो वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, मतलब उसको अपनाया भी है. स्टूडेंट्स, यू हैव सीन हियर दैट द वर्ड सूफीज़, जो कि सूफ़ी मत, जो सूफ़ी लोग हैं, ये लोग कौन है? सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स. ये लोग मिस्टिक वर्ड है. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज हु बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल apprehension of truth,
दैट आर बियॉन्ड इंटेलेक्ट। आप कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को मान लेना जो कि सच नहीं है या फिर जो हमारी बुद्धि है उसके परे है, यानी जो साइंस के परे है, हम ऐसे कह सकते हैं, रहस्यवादी हम कह सकते हैं, ठीक है। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फसाइज लव। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो बाहर लोग बहुत ज़्यादा जो रिचुअल्स एक्सेप्ट करते थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कर्म कांडों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत आडंबर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। एंड उन्होंने किस पर फोकस किया, एम्फसाइज किया लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टूवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमंस। उन्होंने कहा कि वो जो ये बाहरी आडंबर है इसको हम नहीं मानते और हम ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं और सभी मनुष्यों के प्रति हमें क्या रखना चाहिए, फीलिंग ऑफ कंपैशन, यानी कि दया भाव रखने पर जोर दिया इन्होंने, ठीक है। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म एंड द वर्ड इज मोनोथिज्म। हम ये इसका मीनिंग है डॉक्ट्रिन ऑफ और बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, राइट। जो हम बोल सकते हैं एक ईश्वरवाद, यानी कि भगवान एक है, जो एक ही भगवान को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, और सबमिशन टू वन गॉड, राइट। तो इस्लाम ने क्या किया, एकेश्वरवाद को, एक अल्लाह के प्रति अपना पूर्ण समर्पण को एक्सेप्ट किया और इसी बात को दृढ़ता से लोगों के सामने रखा, उसको काफ़ी प्रोपागेट किया, प्रचार प्रसार किया उसका, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था ये 8 एंड 9 सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर्स ने डेवलप किया था, जिनका डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, हम कह सकते हैं कि विभिन्न पहलू थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वान लोग कहलाए ये लोग, जो स्कॉलर्स थे मीन्स विद्वान लोग। इन्होंने पवित्र कानून जो था एक, जैसे कह सकते हैं होली लॉ, उसको बोलते हैं शरीयत, ठीक है, एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और जो इस्लाम के जो धर्मशास्त्र थे उनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ों को, कई एस्पेक्ट्स को लोगों को दिखाया। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये जो इस्लाम था धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया, जबकि जो सूफ़ी लोग थे उन्होंने तो ईश्वर को प्राप्त करने का और ईश्वर को समर्पित होने का अलग ही रास्ता दिखाया था, ठीक है। जो सूफ़ी लोग थे वो मुस्लिम धार्मिक विद्वान हम कह सकते हैं, हमने देखा कि वो स्कॉलर्स थे, तो धार्मिक विद्वान थे, उन्होंने कुछ ऐसे कर्मकांड को निर्धारित कर रखा था और कई सारे लोगों ने ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लगा रखे थे कि ये करना चाहिए, ये होना ही चाहिए, कोड्स ऑफ बिहेवियर हम कह सकते हैं, डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, जो कि कई लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। जो सूफ़ी लोग थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जो कि धार्मिक विद्वान लोग एक्सेप्ट करते थे, उन्होंने सूफ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर के साथ वैसे ही प्रेम करना चाहते हैं जैसे को मतलब टू लवर्स करते हैं, ठीक है, एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है हम, जिसमें उन्होंने क्या किया, दुनिया के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। हियर इट इज रिटन, सीक्स हिज बिलवड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड, यानी कि संसार के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे संत पोइट भी हैं जो कि मतलब जैसे कि बहुत सारे संतों का नाम भी दिया हुआ है, जो संत कवि हैं वो सूफ़ी लोग थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें केवल, और उसको उन्होंने कई काव्य रचनाओं में लिखा, मतलब एनेक्डोट्स लिखे, मतलब इसको हम बोलेंगे काव्य रचनाएं की उन्होंने, ठीक है। एंड फैबल्स डिवेलप अराउंड दैम, ठीक है। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया, कुछ ऐसे लोग थे जो मध्य एशिया के थे, जैसे कि जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी प्रोज के फॉर्म में लिखी, प्रोज के फॉर्म में, और उस साहित्य को उन्होंने जो रिटन पार्ट था उसको कई जगह पर स्टोरीज़ के फॉर्म में भी लिखा, ताकि सूफ़ी लोग, जो लोग इधर उधर जाते हैं वो फिर उसको बताएं और वो इधर उधर भी विकसित हो जाए जहाँ वो जिन भी एरियाज़ में वो लोग जा रहे हैं। मध्य एशिया के कुछ महान सूफ़ी संत लोग थे जो दो नेम दिए हुए हैं, ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के, दैट वो गज़ाली, रूमी और सादी, राइट।
ये लोग क्या थे, इनके ही कुछ नाम लिए जाते हैं जो कि मध्य एशिया के महान सूफी लोग थे, नाथपंथी लोग थे और जो सिद्ध लोग थे और योगियों की तरह सूफी लोगों को यही मानते थे कि मतलब ये सब लोग एक ही चीज़ मानते थे कि दुनिया के प्रति हमें क्या रखना चाहिए, अलग नज़रिया रखना चाहिए, एक प्रेम की भावना रखनी चाहिए, दिल में ये आना चाहिए कि दूसरों के दर्द के बारे में जानें। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ढोंग करें कि हम घंटों पूजा कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो मतलब भगवान मतलब जो गॉड से हमें कनेक्ट होने के लिए जो फीलिंग है इसे कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता है, ये ऑटोमेटिक डेवलप होती है, ठीक है। उन्होंने किसी भी औलिया या फिर किसी भी पीर की देख रेख में कुछ भी नहीं किया, जैसे कि बोल सकते हैं जिक्र मीन्स होता है चैंटिंग ऑफ नेम और सेक्रेट फॉर्मूला, हम कह सकते हैं नाम, किसी नाम का जप करना या फिर चिंतन करना या फिर समा यानी कि गाना, ठीक है। रक्स मीन्स होता है डांसिंग, ठीक है। और कुछ नीति चर्चा जैसे कि हम कंट्रोल कर लें हम अपनी ब्रीदिंग पर आदि, है ना, ठीक है। ब्रीथ कंट्रोल के बारे में तो कई जगह पर बोला गया है। अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर thus emerged the silsila, a spiritually genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method, tariq of instruction and ritual practices. Okay student, तो जैसा हमने देखा कि जो ये आध्यात्मिक लोग थे, जो स्पिरिचुअली सूफी लोग थे, जो उस्ताद लोग थे, उन्होंने उस्तादों की जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने क्या किया, न्यू चीज़ डेवलप हुई, स्पिरिचुअल जीनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स क्या डेवलप हुआ, सिलसिलाज, ठीक है। सिलसिला बहुत सारे उदय हुए, प्रादुर्भाव हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ। इनसे क्या हुआ, हर एक सिलसिला में क्या होता था, कुछ निर्देश धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीके से लिखा होता था जिसको लोग अपनाते थे, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट मैथड्स, दैट इज तरीका हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका था, ठीक है। मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल प्रैक्टिस, किस तरीके से वर्शिप करनी है, उसी कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस के डिफरेंट तरीके उसमें लिखे हुए थे, ठीक है। हियर यू कैन सी इमेज ऑफ सूफी पीपल्स जो कि बहुत खुश हैं। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लरिश्ड इन 15th and 16th century and this order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nund Rishi, and had a deep impact on the life of the people. In Kashmir, a number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. यानी कि ये कश्मीर के ऋषि हैं जो कि एक तरीके से सूफी ही थे। इन्होंने 15th और 16th सेंचुरी में ये बहुत फ्लरिश्ड हुए, लोगों पर इनका बहुत प्रभाव रहा। और कुछ शेख नूरुद्दीन वाली जो थे उनको हम नुंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी सारे मंदिर बनाए गए जो कि इन्हीं को डेडिकेट करते थे, ऋषि सेंट को ही, तो जो कि हम कश्मीर में देख सकते हैं। यहाँ जो ये इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सूफी पीपल्स हैं, सूफी लोग हैं, कितना खुश हैं, बहुत, है ना, मिस्टिक इन एक्सटैसी, ओके, आनंदित सूफी, ठीक है। Okay, so now we'll discuss about hospice, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर। ये एक ऐसी जगह होती है बेटा जहाँ पर क्या होता है, जो लोग आते जाते हैं वो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, मतलब रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जो भी कहीं किसी धार्मिक स्थल वगैरह पे जाते हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, ये एक पेज है, मानो मतलब पांडुलिपि हम कह सकते हैं इसको, ये कुरान की पांडुलिपि है, ठीक है। इस 15th सेंचुरी में इस तरह का पांडुलिपि का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और जहाँ पर भी जो सूफी संस्थाएं होती हैं, जहाँ पर जो संत लोग अक्सर आकर रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, हॉस्पिस, ओके। Now we'll discuss more. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from 11th century onwards.
दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डिवेलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, द चिश्ती सिलसिला was among the most influential order. It had a long time of teachers like ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब and Khwaja Nizamuddin Auliya from Delhi and Bandanwaz Gisudaraj of Gulbarg. So students, जो 11वीं शताब्दी थी उसके पास बहुत सारे सूफ़ी लोग हो गए जो कि मध्य एशिया से आकर के क्या करते थे, हिंदुस्तान में बसने लगे। धीरे धीरे आकर के वो हिंदुस्तान शिफ्ट होने लगे, सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम 11th सेंचुरी एंडवर्ड्स। इसके बाद ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी कुछ हमने चैप्टर 3 में जान लिया है, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना की गई थी तो उसके साथ कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कि उस समय बहुत ज़्यादा ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है ये काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ था, काफ़ी मजबूत हो गया था। तो जो ये हमारा उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र डेवलप हो गए थे, ठीक है, काफ़ी जगहों पर। और जो चिश्ती सिलसिला थे, इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक इफ़ेक्टिव रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। इसमें कुछ औलिया थे जिनकी लंबी परंपराएं थीं, ठीक है, औलियाओं की तो काफ़ी लंबी परंपरा रही है। और जब हम बात करेंगे औलिया लोगों की तो उनमें ये नेम कुछ गिवन है, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली के, और अजमेर के, और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और पंजाब के बाबा फरीद, और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज, ठीक है। ये कुछ एक मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट औलिया लोग थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इनका लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव था। The Sufi master held their assemblies in their खानकाह और हॉस्पिसेस। हम बोल सकते हैं इसको, हम लोग खानकाह भी बोल सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिसेस मीन्स खानकाह भी होता है, जहाँ पर लोग आकर के रहते हैं। सूफी संस्था के जो लोग होते हैं, सूफी संत लोग अक्सर आकर के इसमें रहते हैं, ठीक है, जब भी वो कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। Devotee of all description, including member of royalty and nobility and ordinary people, flocked to these khanqah. They discussed spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems, or simply attended the music and dance session. Okay, here the word is flocked. Maybe it will be difficult for you. Meaning of flocked is जैसे कि लोग आते रहते हैं, मतलब आ जा रहे हैं, यानी move और go together, ठीक है। फ्लॉकिंग मीन्स ये होता है। जो सूफी संत लोग थे वो अपने खानकाहों में रहते थे, विशेष बैठक का आयोजन करते रहते थे, ठीक है, स्पेशल असेंबलीज रहती थी उनकी, और जहाँ सभी लोग जो भक्त लोग थे वो भी आते थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो शाही घराने के लोग भी थे, जो रॉयल फैमिली के नोबल पीपल्स थे वो भी आते थे, और आम लोग भी शामिल थे, इसमें ऑर्डिनरी पीपल्स भी शामिल थे, और जो कि खानकाह में आते रहते थे। और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, यानी स्पिरिचुअल चीज़ों पे टॉकिंग करते थे, अपने स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्कशन रखते थे अपना, एंड सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम। और वो सोचते थे कि उनकी जो दुनिया से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए संतों के पास क्या है, स्पेशल ब्लेसिंग है, आशीर्वाद मिल रखा है उनको। ब्लेसिंग है मतलब वो एक स्पेशल आशीर्वाद है उनके पास, और वो क्या करेंगे, इस संसार की प्रॉब्लम से उनको उबार लेंगे। और कुछ ऐसे मतलब डांस सेशंस भी रहते थे और सिंगिंग के सेशंस रहते थे, जिसको हम बोल सकते हैं जलसा,
उनमें भी लोग शामिल होते थे, ठीक है। सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस, ठीक है, उसमें भी लोग शामिल हो जाते थे ताकि उनको अच्छी फीलिंग आए, ओके। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve other of their illness and troubles. The tomb of Dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faith thronged. Okay. मतलब ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफ़ी मास्टर्स, क्या लोग सोचते थे कि जो अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफ़ी औलिया के पास क्या है, कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, मिराकुलस पावर्स हैं जो कि क्या करेंगे, उनको आम लोगों की जो बीमारियां हैं, तकलीफ़ हैं, उनसे क्या हो जाएगा, उनको छुटकारा मिल जाएगा। और सूफ़ी संत की जो दरगाह है वो कैसे है, एक श्राइन सेंटर है, आप कह सकते हैं पिलग्रिमेज एरिया, यानी कि धार्मिक तीर्थ स्थल बन जाया करता था, ठीक है। धार्मिक स्थल की तरह लोग उधर जाते थे जहाँ सभी तरह के सभी धर्म के लोग भी इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है। या थ्रॉन्ग मीन्स है क्राउड, ठीक है, लोग इकट्ठे होते थे। यहाँ आप देख सकते हैं डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्राइन्स, यानी कि सभी पृष्ठभूमियों के, सभी रिलीजन के भक्त लोग सूफी दरगाहों पर आया जाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस फाइंडिंग द लॉर्ड, यानी कि मालिक, यानी कि प्रभु की खोज, भगवान की खोज, ठीक है। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. Here is an excerpt from his work. हम बोल सकते हैं ये द वर्ड, इसमें मतलब इनकी एक कृति है, ये क्या है, एक्सर्प्ट जो है एक कृति, एक उद्धरण है, प्रस्तुत किया गया है उनके काम से, ठीक है। जो जी कौन है, जलालुद्दीन रूमी, जो कि 13th century में एक महान सूफी पोइट होते थे, या हम कह सकते हैं शायर होते थे। वो ईरान के रहने वाले थे और फारसी लैंग्वेज में अपनी जो रचना होती थी उसको करते थे, ठीक है। उन्होंने जो भी लिखा वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। He was not on the cross of Christians. I went to the Hindu temples. In none of them was there any sign he was not on the heights or in the lowlands. I went to the Kaaba of Makkah. He was not there. I asked about him from एविसेना द फिलोसफर, मतलब ये एविसेना जो है एक फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं। ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एविसेना। आई लुक्ड इन टू माई हार्ट, इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम, ही वॉज इन नो अदर प्लेस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स। ऐसा हमने बहुत बार सुना भी है लोगों को बोलते हुए कि भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं होते, भगवान हमारे अंदर होते हैं, भगवान हमारे हर्ट में रहते हैं, ठीक है ना। हम बहुत मंदिर जाते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम अगर भगवान को दिल से भी याद कर लेते हैं तो भगवान के पास क्या हो जाती है, हमारी ऑफरिंग पे हो जाती है, हमारी वो पूजा कंप्लीट मान ली जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो ईसाई जो जलालुद्दीन रूमी थे वो ईसाइयों की सूली पर नहीं थे। मतलब उन्होंने कहा कि मैं गया, देखा जाके क्रॉस सिंबल जहाँ मुझे मिला वहाँ मैंने देखा कि ईसाइयों की सूली पर भी भगवान नहीं थे। फिर उन्होंने कहा मैं हिंदू के मंदिरों में भी गया, वहाँ भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। फिर ना तो वो ऊंचाइयों में मिले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत पर्वतों पहाड़ों के पास मंदिर बने होते हैं वहाँ जाते हैं, बोलते हैं, ना तो वो ऊंचाइयों पे मिले, ना ही वो खाइयों में मिले, है ना। हाइट्स मतलब ऊंचाइयों में, एंड लोलैंड्स यानी कि ज़मीन में, नीचे भी नहीं मिले उनको, कहीं पर नीचे की साइड भी नहीं दिखाई दिए वो लोलैंड्स। आई वेंट टू द काबा, उन्होंने कहा मैं मक्का के काबा भी गया, है ना, वहाँ भी नहीं था भगवान। मैंने उसको उनके बारे में दार्शनिक एक थे एविसेना से भी पूछा, वो एविसेना की पहुँच से भी परे थे, मतलब भगवान उनको भी नहीं पता था कि कहाँ हैं। मैंने अपने दिल में झांका, फिर उन्होंने क्या किया, लुक्ड इनटू माय हार्ट, अपने दिल में झांका और यही उसकी जगह थी, है ना, इन दैट हिज प्लेस, और उनको वो हृदय में ही मिल गए, वही मैंने उसे पाया और वो और कहीं नहीं दिखा। कितनी भी जगहों पर वो गए। जलालुद्दीन रूमी जी एक शायर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अपना पोइट्री लिखी है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ओके, विल डिस्कस अबाउट न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया।
So thank you students. Please stay connected. Take care. Thank you.